एक्चुअली बेटा द होल नंबर सिस्टम, द होल नंबर सिस्टम I mean to say कि the whole number system is whatever the number exists in this world of mathematics. The whole numbers means all the numbers that exist in this world are classified into two categories: real number and imaginary number. This is also known as complex number. Okay, means all the numbers, whatever number that exist in this mathematical system, all those numbers are categorized into the two categories. One part is real and other part is imaginary number, or you can say complex number. Okay, both are same, imaginary number and or complex number. You will say either imaginary or complex. Okay, so this is not in our syllabus, imaginary and complex number. Imaginary number, the study of imaginary number starts from class 11th and onwards. Starts from class 11th. Okay, so this is out of syllabus, and this means is you have not seen any imaginary numbers till now up to class 8th. Okay, because this starts from class 11th, so there is no meaning to see this type of number in your book. Now comes to real number. Whatever number you have seen till now up to class 8th or 9th, all those numbers falls in this category, real number. Whether that is natural, whole, integer, rational, all are real numbers. Okay, but there is another part of real number that you have not seen till now, that is irrational, है ना. आप रेशनल तो अभी तक देखते ही आए हैं, अभी तक क्लास 8 तक आपने जितना भी नंबर देखा है सब क्या रहा है, वो रेशनल, मतलब रियल का पार्ट है वो. बट रियल के दो पार्ट हैं, rational and irrational. Okay, now the real number can further be divided into two parts: rational number and irrational number. Okay, so till now we have studied about rational number, we know everything about it. Now we will study about irrational. Rational is done, irrational will be there. Okay, so let's start with the definition. What is irrational? A simple definition is a number that cannot be written in the form p by q, that in the form of where p and q are integers. ये भी मेंशन करना जरूरी है, where p and q are integers. जिस नंबर को आप p by q के फॉर्म में नहीं लिख पाए वो नंबर क्या है, इरेशनल है. और p और q इंटीजर्स भी होने चाहिए थे. तो आप सोचेंगे सर ऐसा नंबर क्या है. देयर आर मैनी नंबर्स लाइक दिस. फॉर एग्जांपल √2. अब एक बच्चा बोलेगा सर वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q. For example, √2 by 1, it is of the form of p by q, na? But p and q are integers. No, q is integer but p is not integer. So both condition must be fulfilled. Of the form p by q, and p and q must be integer. Then rational, otherwise irrational. Clear? So what is the definition of irrational number?
वेरी गुड, ठीक, दिस इज इरेशनल। अगर कोई पूछे कि कैसा होता है भाई जिसको पी बाई क्यू में नहीं रख कर पाते हैं, तो आप रूट में कोई नंबर बताओ जो रूट से बाहर नहीं आ पा रहा है, √5, √2, √3, √7, √6, √4 नहीं, क्योंकि √4 तो 2 बन जाएगा, वो रेशनल हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक क्या है, देखो जो नंबर टर्मिनेट भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता डेसिमल में, जैसे तुमने रेशनल देखा, अभी रेशनल में दो ही तरह का डेसिमल हमने दिखाया था, एक जो कि टर्मिनेट हो गया था, एक जो रिपीट हो रहा था। बट देयर इज ए थर्ड कैटेगरी ऑफ डेसिमल नंबर्स एज वेल, which is non-terminating, non-repeating. Okay. Suppose you have a rational, a decimal expansion like this. It is terminating. You can write it in the form of P by Q. Suppose you have another category, 0.67, 67, 67, and so on. It is repeating. Because 6767 is repeating. It can also be written in the form P by Q, right? But there is another category of decimal. Okay. For example, 0.2101000001000001. Is it repeating? Terminating? These three dots telling us that this is not terminated decimal, right? And this increasing number of zeros telling us this is not repeating. बात समझ आ रही बेटा? ये repeating भी नहीं है और terminating भी नहीं है, ये P by Q के फॉर्म में नहीं आ पाएगा, समझे? ये P by Q के फॉर्म में नहीं आ पाएगा। देखो एक्चुअली अभी हमने बोल दिया कि रैशनल इज डन, बट द होल रैशनल इज नॉट डन। अभी रैशनल में भी हम लोग कुछ सीखेंगे, जैसे रिपीटिंग डेसिमल्स को पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना, तो वो भी एक्सरसाइज में आएगा, तो उसको सीख लेंगे। अभी इरेशनल की टॉपिक है, इरेशनल की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर? अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू इज इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल, √2, √3, √5, एनी नंबर दैट कैनॉट कम्स आउटसाइड द रूट। ओके, रूट से बाहर जो नहीं आ सकता, इसका पेयर नहीं बन सकता, जैसे √4 बाहर आ जाएगा, √9 बाहर आ जाएगा, √16 बाहर आ जाएगा, वो इरेशनल नहीं है। बाकी जो भी रूट में जाएगा इरेशनल ही हो जाएगा। और अगर बिना रूट का कोई पूछे, बोले डेसिमल में दिखाओ भाई, तो कुछ ऐसा लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? कुछ भी, जैसे 3.0100100001। ओके, अब इस 1 की जगह आप 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, और ये डॉट लगाना नहीं भूलोगे, ठीक? वो भी इरेशनल है, डेसिमल फॉर्म है उसका। तो इरेशनल, वी कैन राइट 2 definition of irrational. One is a number that cannot be written of the form P by Q, and another definition is a number whose decimal expansion is neither terminating nor repeating. A number whose decimal expansion is neither terminating nor repeating is irrational. समझे मैं क्या बोल रहा हूं? एक नंबर जिसका डेसिमल फॉर्म करने पे ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, वो क्या है? ये भी डिफिनेशन यूज कर सकते हैं आप, ठीक है? रैशनल के लिए क्या डेफिनेशन यूज किए थे? अ नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q, P and Q आर इंटीजर्स। इरेशनल के लिए क्या डेफिनेशन यूज की? अ नंबर ऑफ दैट कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म P by Q where P and Q आर इंटीजर्स, ठीक? लेकिन एक और डेफिनेशन लगा सकते हैं डेसिमल के हिसाब से, एक और डेफिनेशन लगा सकते हैं, किस हिसाब से? हाँ, अभी इरेशनल का बताया ना, अ नंबर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज इरेशनल। ऐसे ही रेशनल में लगा सकते हो, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज ईदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ईदर टर्मिनेटिंग और, है ना?
either terminate like this or repeat like this are rational numbers. If the decimal extension of a number is either terminating or repeating, that is rational, and if the decimal extension of a number is neither nor terminating or repeating, irrational. Clear? तो दो दो डिफिनेशन है, बुक में दोनों डिफिनेशन है, दोनों पता होना चाहिए, ठीक है? कल दोनों डिफिनेशन पता रहेगा ना? अभी नहीं, नोट कर लो, डिफिनेशन दोनों तरीके से पूछेंगे, एक पी बाई क्यू के फॉर्म से और एक डेसिमल फॉर्म के हिसाब से। नोट कर लो पॉइंट बना के, एच डब्ल्यू लिख करके कि डिफिनीशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल बाय टू वेज, वन ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म एंड अदर विद द हेल्प ऑफ डेसिमल फॉर्म। डिफिनीशन बुक में भी मिल जाएगा, अभी भी मैंने कई बार बोल दिया है, चैप्टर के लास्ट में नोट्स वगैरह मिल जाएंगे तो उसमें मिल जाएगा आप लोग को, लेकिन अभी तो कल बताने के लिए आपको अपने से ही करना पड़ेगा। ये लिखवाना चाहते हैं तो बोलिए, लिखवा दें। एग्जाम्पल भी उसमें ले लीजिएगा। हो गया नोट? ठीक है ना, हो गया ना? तो व्हाट इज इरेशनल नंबर, इज इट क्लियर? इरेशनल नंबर क्लियर है? एग्जाम्पल भी दे सकते हैं ना, एग्जाम्पल दे सकते हैं ना इरेशनल नंबर का? श्रेयांश, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल दे सकते हो? एग्जाम्पल मीन्स व्हाट टाइप ऑफ, दो तीन चार इरेशनल नंबर बताओ, बैठ के ही बता सकते हो, कोई बात नहीं, बताओ बैठ। बाई वन क्यों लगा रहे हो? नहीं, लगाने की जरूरत नहीं है, हम अपने से समझ लेंगे बाई वन। व्हाट अबाउट अंडर रूट 9? बाहर आ जाता है तो वो नहीं है। डेसिमल में कोई एग्जांपल दो इरेशनल का।
कहीं कहीं भी हो सकता है वो। वेरी गुड, ठीक है, डॉट 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 भी लगा देना, ठीक है। अभी आप लोग इनकी बात सुने, ये क्या बता रहे थे, जो भी बता रहे थे ठीक बता रहे थे, बशर्ते ये 0 पॉइंट से शुरू होने वाला कोई कंडीशन नहीं है, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे हम 4.01 0001 00001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, क्लियर है ना सबको? तो मैं इसको चालू कर दे रहा हूँ यार, समझे, गर्मी लग रही है इधर। Now we will discuss first how to locate a irrational number on the number line. How to locate a irrational number on the number line. And before explaining this, we must know how to locate rational numbers on the number line. आप रेशनल नंबर से नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना जानते हैं? नंबर लाइन पे सारे नंबर आ जाते हैं, पता है, एक ऐसे लाइन खींचिए, जो भी नंबर है उस लाइन पे आएगा। तो रेशनल वाले आप जानते हैं, जैसे हमने बोल दिया कि रिप्रेजेंट represent 5 on real number line. 5 को रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे, करिए, कर लेंगे बेटा, करिए 5 को। हाँ, अब जैसे देखो, दो तरह के नंबर लाइन हो सकती है, इमेजिनरी और रियल। इमेजिनरी से तो कोई मतलब है नहीं, तो जो भी नंबर लाइन तुम खींचते हो वो रियल नंबर लाइन ही होती है। डन। ये क्यों 4 ही खींच रहे हो? क्यों 4 खींच रहे हो इसमें? 1 2 3 4
y4 1 2 3 4 y4 parts between 0 and 1. सर ये फिफ्थ आ रहा है 5/1 मतलब तो 5 तो सिंपल है अपॉन इसमें क्या दिक्कत है? देखो पार्ट्स वहां पे मैटर करेगा ना, जहाँ हाँ जहाँ पे भी वो फ्रैक्शन में होगा कुछ पार्ट होगा, यहाँ तो होल है एकदम। सभी का सही है, ठीक है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते समय बस एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि दो इक्वल अमाउंट ऑफ नंबर्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे 1 से 2 के बीच में जितना डिस्टेंस होगा 2 से 3 में उतना ही होगा। चलिए ये तो ठीक है। अब यहाँ आ गया 3/7। रिप्रेजेंट 3/7 ऑन रियल नंबर लाइन। सभी लोग अपना अपना करेंगे ना, कोई डाउट होगा तो हम देख लेंगे, उसको वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे। डन। 1 is 7/7 यही है ना? ठीक है, तो उसको 7/7 लिखने की जरूरत नहीं है, 10 लिखिए फिर उसके आगे जो कहाँ पे है ये 1 2 3 3/7 फिर बेटा, तो ये ऐसे थोड़ी होगा, वो तो ऐसे होगा जैसे कर रहे थे तुम। मैं आता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है, इधर देख करके फिर आ रहा हूँ। हाँ इसका देख सकते हो, ये सही किया है। हाँ वो उसी का देखो, सही तो है उसका। इतना बनाने की जरूरत नहीं बेटा, तुम्हारा समय जाएगा ना इसमें। ठीक है। तुमको आइडिया मिला क्या अगर मैं? यस सर। अब देखो यहाँ पार्ट में है, फ्रैक्शन है ना, इसमें तुमको वो करना होगा। ये 0 हो गया, ये 1/7, सॉरी 1/7 2/7 3/7 ऐसे 4/7। सर इसको लिखना होगा। हाँ 5/7 तभी तो 3/7 दिखाओगे, नहीं लिखोगे कैसे दिखाओगे, वहां तो ऐसा कुछ था ही नहीं। और ये हो गया 7/7 मीन्स 1। अब आगे की जरूरत नहीं है, ये है तुम्हारा 3/7। ठीक है, अभी तक तो सभी लोग को आ रहा है। 2-3 और टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया 4 होल समझ पा रहे हैं क्या लिखे हैं? 4 होल 2/3, 4 होल 2/3, इसको रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये माइनस भी लगा दीजिए इसमें, माइनस, ठीक है, -4 होल 2/3।
डन। गिव मी। इसको में माइनस लगा देना, ठीक है। हाँ सर वो लग जाएगा, इसलिए पहले चेक कराएं, यही माइनस लगा दिया और ये एवरेज सब पे माइनस लगाना है। हाँ वो समझ रहा था। 1 लिख दिया 3/3 और इसको सर 2 लिख सकते हैं। हाँ फिर इसको 3 उसको लिख ही लीजिएगा, ठीक है। वही सही तरीका है बेटा, ठीक है ना। हाँ सर और रीजन नहीं लिखे हो बीच वाले तो डॉट 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 कर दिए हो। इसको कर सकते हैं सर कि पूरा ही लिखना होगा। नहीं बेटा, ये डॉट 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 का कोई तरीका नहीं होता है यहाँ पे नंबर लाइन में। ये जरूर होता है कि आप वो नंबर स्किप कर दीजिए यहीं से। जैसे 1 2 हाँ, ऐसे करके। जैसे आप ऐसे कर सकते थे। ये नंबर लाइन है तो आप यहाँ पे सपोज करिए 0 है और आपको क्या बनाना था, 4 होल ना। आप सीधे यहाँ पे -4 कर लेते, ठीक है। -4 मीन्स क्या, आपका जो भी नंबर उसमें पड़ता, और फिर उसके बाद क्या, -4 1/3, क्योंकि ये 2/3 है ना, तो अपॉन में 3 चलता ही रहता है। और -4 3/3 मतलब -5 सीधे आ जाता है ये समझ रहे हो। हाँ, तो अगर तुम उतना नहीं करना चाहते हो तो सीधे जो है इधर के नंबर्स को तुम गायब करके यहाँ से शुरू कर सकते हो, छोड़ करके जगह। लेकिन अगर फिर करोगे तो ऐसे करना पड़ेगा। डॉट डॉट का तरीका उतना कन्वीनियंस नहीं है। वैसे वो अगर तुम पूरा लिख देते तो तुम्हारा सही है। ठीक तो है, ठीक है।